Assalamu alaikum. Welcome to Kalam Learning Center. I'm Safia Razia, your English instructor. I welcome you all from this platform to the batch of Parvaz. जैसा कि आप जानते हैं परवाज बैच बेसिकली क्लास 10th पास आउट बच्चों के लिए है जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं. A journey of 1,000 miles begins with small steps. आपका डेस्टिनेशन JMI&AMU है और इस JMI&AMU तक पहुंचने का जो सफ़र जो आप तय करेंगे उसको हमने छोटे स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट किया है. PYQ सीरीज़ भी उसी तरह का एक स्मॉल स्टेप है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं. और इस इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड PYQ सीरीज़ में मैंने जो आपके मोस्ट वेटेज टॉपिक हैं जैसे कि टेंसेस, उसके बाद है नरेशन एंड देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो ये तीनों टॉपिक्स को मैंने आज कवर करने की कोशिश की है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक लेट्स स्टार्ट, दैट इज टेंसेस. Tense, as you know, what is the meaning of tense? Tense means time, and time is divided into three parts, that is present, past and future. Tense क्या बताता है? हमारा जो actions है या हमारी जो state है वो present moment में क्या है, past में क्या है या future में क्या है. इन तीनों चीज़ों को tense हमें clear करता है. चलिए अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साथ हम एक एक टेंसेस को लेते हैं. प्रेजेंट टेंस, एवरी टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 sections एंड दैट 4 sections आर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect and present perfect continuous. Now what is simple present? As I already told you during my classes that simple present is the tense which shows our daily routine, our habitual action and fact. Regarding present continuous tense, the action which is going on in the present moment, that is called present continuous tense. Like I'm teaching. Okay. The third one is present perfect. Present perfect, the action is started before the certain point of time and completed in the present moment. That is called present perfect. Like you have passed out class 10th. That is present perfect tense. Now what is next? Present perfect continuous tense. The action is started before the certain point of time and then continued in the present moment. Action did not stop, complete नहीं हुआ, चल रहा है present में ही, तो वो कहलाएगा present perfect continuous tense. इन सब टेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में आपको एक एक स्ट्रक्चर बताया है. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस यानी कि जो वक्त बीत गया, उस बीते हुए वक्त में हमने कोई काम कैसे हुआ, हो रहा था, हो चुका है था या हुआ, इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करता है पास्ट टेंस. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सेम वे इन द 4 sections: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट and past perfect continuous. Now the next one is future tense. The same way it has also the 4 divisions: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Now let's start the PYQ series. अब ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो हमने पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो अब तक के हो चुके हैं 2024 तक, हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखा और उसके बाद जो सबसे मोस्ट वेटेज क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं. आपको अब तक आप बहुत कुछ हमारे साथ पढ़ चुके हैं, आपको सब कुछ आता है, तो अब बारी है आपकी कि आप हमें आंसर कैसे देंगे. The first question is, my plane dash at 5 p.m. on Monday. I don't need call a taxi. My friend dash me to the airport. Now, the options are given: was leaving, has taken, is leaving, will take, leaves, is going to take, will leave, takes.
and this question was asked in 2022, right? चलिए आंसर सेंटेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, माई प्लेन, क्या होगा इसका आंसर, लीव्स, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या क्या बताता है, हमारे शेड्यूल को, हमारे डेली रूटीन को बताता है, तो यहाँ प्लेन का शेड्यूल बता रहा है simple present tense, that's why it is leaves. The plane leaves at 5 p.m. on Monday. I don't need call a taxi. My friend is going to take shows the future tense. So is going to take me to the airport. Now you got it. So answer is C. Now what is next? Question 2. Choose the correct tense. I dash this film several times. Correct tense means C आपको ब्रैकेट में दिया गया है, वो फॉर्म दी गई है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा टेंस ये हो रहा है जो हम इसकी वो फॉर्म यहाँ से पिक करेंगे. I dash this film several times. Several times मतलब आपने ये फिल्म कई बार देखी है. अब तो हो नहीं सकता क्योंकि देखी है मतलब काम कंप्लीट हो गया है. It means it is I have seen. The answer is seen. I have seen this film several times. I, you, we के साथ हम have लगाते हैं, ठीक है. And this question was asked in 2022. Now next is question number 3. Choose the correct tense. I dash a letter to her yesterday. बात कब की हो रही है, yesterday की. Yesterday means it's a past tense, right? And in the bracket it's given send, S-E-N, send, verb. अब देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, had sent, have sent, was sending और sent. चलिए जल्दी से बताइए आंसर. Yes, the answer is sent, D. Your answer is correct. It is D. I sent a letter to her yesterday. It is simple past. Which tense it is? It is simple past. And simple past means the action just took place. ठीक है. This question was asked in 2024. Now what is next? Question number 4. Seema and her family dash here since January 1999. In bracket the verb is given live. अब आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि सीमा एंड हर फैमिली, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस पे सब्जेक्ट दो हैं. व्हेन द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल इट मीन्स इज लिविंग हो नहीं सकता. अब क्या है, हैव बीन लिविंग, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम भी दिया गया है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है. कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव बीन लिविंग. द आंसर इज हैव बीन लिविंग. और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि ये स्पेसिफिक टाइम या अनस्पेसिफाइड टाइम को भी शो करता है. अगर यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम मेंशन ना होता तो हम ये भी कह सकते थे कि सीमा एंड हर फैमिली हैव बीन लिविंग फॉर 2 years और फॉर 5 years, तब हम फॉर लगाते, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है. सिंस इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. Medha has been a teacher in this school for the past 5 years is an example of what kind of tense? Has been a teacher. देखिए मैंने आपको बताया है जब काम कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट मोमेंट में तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आपका आंसर होगा सी. अगर इसकी जगह बीन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इसकी जगह बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होती तब तो हम कहते ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. क्योंकि यहाँ पे टीचर है, टीचिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 ओनली. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, क्वेश्चन 6. आई शैल लीव फॉर डलहौजी ऑन मंडे. आई शैल लीव, शैल और विल हम कब यूज करते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको पता है, इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट. फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं. आई और यू के साथ यूजुअली वी यूज शैल, और रिमेनिंग
जो नाउन्स हैं उनके साथ हम विल भी लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ. नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020. क्वेश्चन नंबर 7, डिड यू डैश योर लंच? डिड यू डैश. अभी भी अगर किसी बच्चे से आप बात करिए तो वो बात करते करते में कहता है डिड यू, यस आई डिड. डिड यू के साथ हमेशा आप लोग डन लगाते हो, ठीक है. डिड यू डू होना चाहिए. यूजुअली आप वर्बल कम्युनिकेशन में डू डिड की जगह प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म की जगह आप उसको थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, तो ये आपकी रॉन्ग इंग्लिश हो जाती है. हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर आप डू, डिड और डस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको बेस फॉर्म लगानी है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है. डिड यू डैश योर लंच? डिड यू टेक योर लंच? द आंसर इज टेक, राइट. अब डिड है, डू होता तो प्रेजेंट टेंस होता. डिड है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है. And this question was asked in 2016. Now what is question number 8? By the next month we shall dash the project. By the next month मतलब अगले महीने तक. We shall dash the project. जब हमें ड्यूरेशन एक दे दी जाती है कि उस टाइम तक हम ये काम कर लेंगे, तो इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. By the next month we shall have completed the project, right. We है इसलिए हमने have वाला लिया. अगर we की जगह सिंगुलर फॉर्म होती सब्जेक्ट में तो हम has भी ले सकते थे, but because we is there that's why we have completed, right. We shall have completed. और आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस will shall plus have plus V3 then object. Got it? Based on it, this sentence is there. That's why it is future perfect tense. And the question was asked in 2022. Now question number 9. Select correct option for the sentence I have been preparing for exam dash last month. Up prepositions are given here. You have to choose the correct one. The correct one, because a specific time is given. Again, you know very well, अगर specified है time तो हमें since use करना है, इसलिए आंसर आपका since होगा, ठीक है. This question was asked in 2020. Now next is question 10. The train had left. Had left यानी कि verb की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस के साथ है, हैड के साथ है. आपको अपना अगर आप रिवाइज कीजिए अपने क्लास जब हमने लिए उस वक्त आपको समझाया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट. ये कौन सा टेंस था? ये था पास्ट परफेक्ट टेंस. तो आपका आंसर होगा इसमें पास्ट परफेक्ट के लिए हम एक तो आपका हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का दिया गया है, उसके साथ अब जब हम ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया गया है तो उसके साथ हम दोबारा हैव अराइव नहीं लिख सकते या अराइव नहीं लिख सकते. यहाँ पे आंसर आएगा सी, बिफोर आई अराइव्ड. पास्ट परफेक्ट के साथ आपको सिंपल पास्ट लिखना है, इसलिए यह आंसर आपका आएगा बिफोर आई अराइव. द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. उससे पहले कि दूसरा पास्ट में काम होता कि मैं वहां पहुंचती, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020. नाउ ये जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेम, फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें या जिस तरह से मैंने आपको अपने क्लास में पढ़ाया, अगर आप इसको जानना चाहते हैं, अगर आप इसकी डिटेल में, इसकी डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑफर हम लेकर आए हैं. और ये दो तरह के कोर्सेज हैं जो पेड कोर्सेज हैं, परवास एंड आगाज. परवास जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ फॉर यू फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, those who are going to take entrance in class 11th, and Agaz is for class 9th student, right? These two courses are the cheapest one in all over India.
अगर हम इंडिया पे बात करें तो ये सबसे सस्ते कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्सेज सस्ते ज़रूर हैं बट इनकी फैकल्टी द मोस्ट एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि आप इजीली हम लोग आपको इजीली अवेलेबल कहीं भी हो जाएंगे। नो, इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव फैकल्टीज एंड द कोर्स इज़ द चीपेस्ट वन जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। ठीक है, अगर इसके आप पैसे देखें आप तो द कोर्स वाज अर्लियर इट वाज 4019, नाउ द ऑफर प्राइस इज 399। इफ यू पुट वन मोर कूपन कोड ओवर हियर AMUJMI25, अगर आप ये कोड डाल देते हैं तो उसके बाद आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन यू विल गेट द कोर्सेज इन ओनली ₹300, नॉट मोर देन दैट। कोर्स सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, ये इतना ज़्यादा यूनिक है कि आप इसको आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इट इज़ मेड बाय द एक्सपर्टीज ऑफ ईच सब्जेक्ट, और इतनी ज़बरदस्त आपको इसमें डिटेल्स स्टडी मिलेगी कि आप कहीं भी ढूंढते रह जाएंगे, पूरे नेट पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप इस कोर्सेज को लेकर आपको जो फ़ायदे होंगे उसमें एक ये भी होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट देने का क्या मतलब होता है, टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत हैं हमारे मार्क्स। तो आप अपने आप को जज भी कर सकते हो, आप उसकी डिटेल स्टडी में जा सकते हो, आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो और पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो AMU NJMI के एंट्रेंस के लिए, बिकॉज हम फैकल्टीज वो हैं जिन्होंने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस फील्ड में AMI NJMU में बहुत ईजिली एंट्रेंस क्लियर कराया है जस्ट बिकॉज ऑफ आर। तो आई होप यू विल लाइक दीज 2 कोर्सेज और आप आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब आप हमारे क्लास में होंगे तो हम आपको इंडिविजुअली पूरी तरह से अटेंशन देके आपकी एक एक डाउट्स को, एक एक चीज़ को अपने DPPs के ज़रिए, अपने टीचिंग के ज़रिए, आपके अपने मैसेजेस, आप अपने हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं और हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इनफैक्ट जब हमने इसको क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंसेस में है और उसके बाद है नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव, आई एम टीचिंग यू, दिस इज एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। Subject is when the subject performs the action, and when the subject is active, then it is active voice. But when the object performs the action, then it is passive voice. अब ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके ज़रिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी पिक्चर। ये BEB कहाँ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? BEB is the base form of is, are, am, was, were, इन सब का बेस BEB है। BEB प्लस पास्ट पार्टिसिपल पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बस इसी का ही गेम है। अगर आपको ये पता है कि इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। माई सिस्टर क्लीन्स द हाउस एवरी डे। नाउ माई सिस्टर इज द डूअर, द सब्जेक्ट हियर, एंड क्लीन्स विच टेंस इट इज? इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। The verb is cleans. Receiver is the house. Okay. अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सिस्टर, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, ऑब्जेक्ट क्या था? रिसीवर क्या था? द हाउस। अब हम इसको यहाँ ले आए द हाउस, क्योंकि हाउस इज सिंगुलर है और क्लीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की वजह से इज लगाया है। ठीक है, माई हाउस इज PP यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप V3 भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें लगाना है इज क्लीन्ड बाय माई सिस्टर। डूअर क्या है? माई सिस्टर।
तो डूअर से पहले हम बाय लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ हमको ये देखना होता है कि टेंस क्या है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने इज क्लीन लगाया। अगर इसकी जगह माई सिस्टर क्लीन्ड होता तो ये क्या हो जाता, वॉज क्लीन्ड द हाउस। माई सिस्टर क्लीन्ड द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय माई सिस्टर हो जाता। अगर इसकी जगह माई सिस्टर हैज़ क्लीन्ड द हाउस होता तो क्या होता, द हाउस हैज़ बीन क्लीन्ड बाय माई सिस्टर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन लगा के, हैज़ के साथ बीन लगा के तब पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है। चलिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो प्रोनाउन है वो भी चेंज होते हैं। जब हम पैसिव में बनाते हैं, आई क्या हो जाता है, आई बिकम्स मी, वी बिकम अस, यू बिकम यू ओनली, ही इज हिम, शी इज हर, दे इज देम, एंड हु इज बाय होम। ये बस आपको इतना सा याद रखना है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रोनाउन। अगर इस पे आपने रिसर्च कर लिया, अगर आपने इसको थॉरोली लर्न कर लिया तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। माय फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट। हैज़ बीन सोल्ड आउट यानी कि कौन से टेंस से काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है, हैड नहीं है, हैज़ बीन है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, हैज़ बीन सोल्ड आउट। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हम बीन लगाते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माई फादर्स शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट, it is in passive voice also. This question was asked in 2022, but you don't get confused. आपको क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के ज़रूर पढ़ने होंगे कि पूछा क्या गया है। ये नहीं, मैंने तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि आप इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टेंस, तो आपको सिर्फ टेंस बताना है कि कौन सा है और वो ऑप्शन लिखना है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन थॉरो पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना है, जो पूछा जा रहा है बस उतना ही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, समवन हैज स्टोलन माय पर्स। अब समवन हैज स्टोलन माय पर्स, माय पर्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज है, तो इट मीन्स आंसर पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज बीन। माय पर्स हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि ये आंसर है, लेकिन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डूअर ऐड नहीं है, डूअर सी में ऐड है। देखिए, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, द आंसर इज सी। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड लास्ट ईयर ओनली, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। The exercise had already been done by us. The exercise is done by us. The exercise has already been done by us. The exercise is already done by us. The question was asked in 2023. We have already done the exercise. अब क्या होगा आंसर इसका, हम मतलब हमने क्या किया, we have already done the exercise, हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, the exercise has already been done by us. Answer is C. इसमें देखिए डूअर भी है, वी की जगह बायर्स है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट था वी वो डूअर बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और जो एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई, प्लस हैज़ ऑलरेडी बीन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो हैज़ है तो वो हैज़ ही रहेगा, बस उसके साथ हमें बीन लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, इसमें हैज़ बीन हाइडिंग, वॉज हिड, हैव हिड, had hidden। क्या है ये, पैसिव वॉइस में है,
द डॉग हैड हिडन, क्योंकि ऑलरेडी एक पास्ट टेंस यहाँ पे है तो दूसरा पास्ट टेंस नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, हैड हिडन, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023। अब चलिए हम नेक्स्ट आता है नरेशन। नरेशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, या जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अब यहाँ पे एक कुछ पिक्चर है, इसमें दिया गया है आई प्ले, ये बच्ची कहती है आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स। ये क्या पूछ रही है इससे, व्हाट डिड शी से, तो ये इसको रिस्पॉन्स देती है कि शी सेड दैट शी प्लेज बेसबॉल विद हर फ्रेंड्स। आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स। अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम कहेंगे शी सेड आई प्ले बेसबॉल with my friends। ओके, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का जो सिस्टम है कि आप इन जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। ये स्पीकर का वर्ड था जो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में डाला है। अब किसी की बात को जब आप अपने वर्ड्स में किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। व्हाट डिड शी से, अब ये उससे पूछती है तो ये कहेगी शी सेड दैट शी प्लेज बेसबॉल विद हर फ्रेंड। ये यही तो कहेगी, ये तो नहीं कहेगी, इसके वर्ड्स में तो नहीं बोलेगी ना, अपनी बात, उसकी बात को अपने वर्ड्स में कहेगी। तो क्या हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और हम कंजंक्शन दैट यूज करते हैं। क्या होगा, शी सेड दैट शी प्लेड बेसबॉल विद हर फ्रेंड्स। माई की जगह क्या हो जाएगा, हर। ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जब मैंने अपने डिटेल क्लासेस में आपको ये भी बताया कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये सब क्या होता है, जो ये पार्ट है शी सेड, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये वाला पार्ट है She said I went to the secret cave in the mountain, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको क्या देखना है कि मैंने ये बताया था रूल नंबर 1 में ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में है, एंड यूजुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में ही होती है, बहुत रेयरली आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलेगी। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा वो 1 स्टेप फर्दर चेंज हो जाता है, यानी कि एक स्टेप आगे जाके वो चेंज होगा। वेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तब हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, शी सेड दैट शी वेंट टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन, ये हो नहीं सकता क्योंकि सेम वेंट इज गिवन हियर। शी सेड दैट आई हैड गॉन टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आई यूज हुआ है। अब क्या है राइट वन, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में, वेंट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। मैंने आपको सारे अपने लेक्चर्स में बताया है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। विल ऑल्सो चेंजेस इनटू वुड। तो ये सारी चीज़ें आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें मिल जाएंगी, उनकी डिटेल्स में।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 14. Which option displays the correct change of the following to reported speech? Sunita asked Venkat, how much is the rent for your flat? Now ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे. दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एक में हमें आंसर यस और नो में मिलता है. जिसमें यस और नो में मिलता है हम उसमें इफ और वेदर लगा के आंसर दे देते हैं. लेकिन जो हमें जहाँ पे रीज़न देना होता है या कुछ डिटेल्स में हमें बतानी होती है वहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होते हैं. यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट. अब उसने पूछा है कि तुम्हारा रेंट क्या है, कितना है. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट. ये तो रॉन्ग है. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट was. This is the correct answer. This is the correct option. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है हिज फ्लैट और उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लगती है, वर्ब लास्ट में लगती है. ये एक आप इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वर्ब बाद में है, इसका मतलब ये है आंसर होगा. ठीक है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना होगा कि जैसा उसमें पूछा गया है. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज. ठीक है. सुनीता इंक्वायर्स फ्रॉम वेंकट हाउ मच रेंट ही पेज. अब यहाँ तो वर्डिंग ही चेंज हो गई तो ये भी नहीं है. सुनीता टोल्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज. हाँ, सुनीता टोल्ड वेंकट, टोल्ड नहीं, उसने बताया नहीं था, उसने पूछा था. सुनीता आस्क्ड है, इसलिए ये भी रॉन्ग है. तो आपको ये सारी बारीकियां देखनी है कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है, क्या पूछा गया है, क्या आंसर है. जाहिर सी बात है एक ही करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब तो अनाप शनाप इसमें होगा. तो आपको समझना होगा, समझ के ही इसको आंसर देना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024. नाउ क्वेश्चन नंबर next. The teacher said honesty is the best policy. Not only teacher says, we all should admit and we all should follow that honesty is the best policy. If you are not honest, you cannot get success neither in the world nor in akhirah. So we have to work for both the things. दीन और दुनिया दोनों के लिए हमें वर्क करना है. ठीक है. द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इस क्योंकि ये फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जो फैक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कोई टेंस हम चेंज नहीं करते. जस्ट हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के और हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. तो द टीचर सेड टेल्स दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी. अब ये तो चेंज हो गया टेंस, तो ये नहीं हो सकता. The teacher said that honesty is the best policy. Of course, this is the correct one because reporting verb is also same and the reported speech was also same. So this is the correct option and that question was asked in 2020. Now what is next? Ramesh said to me, my book is better than yours. Ramesh told me that his book was better than mine. अब जहाँ पे set to आता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. टोल्ड टू अगर लगाएंगे आप तो वो रॉन्ग हो जाएगा. टोल्ड सिर्फ लगाएंगे. ठीक है. रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन. रमेश सेड मी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेड लिखा है. रमेश सेज, इन्होंने रिपोर्टिंग वो भी यहाँ पे चेंज कर दी है, ये भी नहीं हो सकता. रमेश आस्क्ड मी दैट हिज बुक इज बेटर देन माइन देन योर्स, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि योर्स को तो हमें चेंज करना है. सो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता. फाइनली द करेक्ट आंसर इज रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन. 2020 क्वेश्चन इज देयर. नाउ नेक्स्ट इज finished. That was top 20 questions of PYQ which I have discussed with you and I gave all the answers. With that I conclude the session. Thank you so much. All the best. Be confident and prepare well for the entrance examination. Thank you so much.